नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज मैं जो पीयूसी सेकेंड ईयर आप लोगों के साहित्य गौरव के अंदर हमने जो पिछली क्लास के अंदर अनुवाद जो आपके अनुवाद थे, मैं ट्रांसलेशन करा रहा था, जो कि 1 से लेकर 23 तक मैंने करवा चुका हूं। अभी नेक्स्ट क्या है, मैं 23 से हमारे क्या है 48 तक जो हमारे वर्कबुक के अंदर है, जो वर्कबुक के अंदर है 24 से 48 तक जो हमारे वर्कबुक के अंदर है, मैं आपको क्या है इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 23 ತನಕ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಬರೆದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಅದು 23 ಲಿಂದ ಮುಂದೆ 24 ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೂडेंट ट्रांसलेशन इतना कोई आपको देखो ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗಮನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಶಬ್ದಗಳು ಇರ್ತವೆ, ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ತದ್ಭವಗಳು. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಶಬ್ದಗಳು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇವೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕನೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ತತ್ಸಮ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತತ್ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅನುವಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಜಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ ಇದೆ. तो मैं क्या इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करूंगा. हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आपको क्या है ट्रांसलेशन कंटिन्यू करते जाऊंगा. ठीक है. हमारा क्या है 24 क्या है, 24 ये ना नोड्री 24 क्या है हमारा 24 वाला है. हम आप लोगों को के पास क्या है ना वर्कबुक होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की. आजकल तो स्टूडेंट को तो बहुत शॉर्टकट में चाहिए, हर चीज शॉर्टकट में मांगते हैं स्टूडेंट. 15 मिनट का वीडियो भी नहीं होता है, उसमें बोलते हैं सर और शॉर्टकट कर दो. अरे शॉर्टकट क्या करना है, पढ़ना है ना, पढ़ना है. जब पेमेंट आएगी, जब नौकरी लोगे ना, नौकरी लोगे तो 1 लाख रुपया पैकेज वाली नौकरी करोगे तो उधर तो नहीं बोलोगे ना शार्ट नौकरी चाहिए, शार्ट पैसे चाहिए. वहां नहीं होता है, पैसे तो फुल चाहिए. नौकरी तो बड़ी चाहिए, नौकरी बड़ी चाहिए ना, और पढ़ाई शॉर्ट चाहिए. तो शॉर्ट पढ़ाई के हिसाब से शॉर्ट ही नौकरी मिलेगी. ठीक है, ऑफिसर का सपना देखना है ना, बड़ा इंसान बनना है तो अच्छी पढ़ाई करके जाना है, शॉर्ट नहीं मांगना है. ठीक है, वो यूट्यूब वाला शॉर्ट जैसा ही पढ़ाई भी इसी कर दिया आप लोगों ने. ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तो फालतू बातें होगी. राइट, हम स्टार्ट करते हैं. अभी नेक्स्ट क्या है 24 गौरीशंकर ಶಿಖರವು हिमालय पर्वत श्रेणिಯಲ್ಲಿ अति ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ. अभी देखो गौरीशंकर शिखर आया है. शिखर भी हिंदी में शिखर ही बोला जाता है. अंदर तत्सम शब्द दे दो डायरेक्ट. शिखर हिमालय तो हिमालय है, हिंदी भी हिमालय, कन्नಡ भी हिमालय. पर्वत ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಪರ್ವತ ಅದ. ಶ್ರೇಣಿ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ भी ಶ್ರೇಣಿ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ भी ಶ್ರೇಣಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಇದೆ, अति ಎತ್ತರ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು चेंज ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. तो हिंदी कन्नड़ा का शब्द सेम है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड है करके. ऐसा हार्ड है कुछ नहीं है. ठीक है, गौरीशंकर ಶಿಖರ वो हिमालय पर्वत श्रेणी अति ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ. ಅಂದ್ರೆ गौरीशंकर शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची शिखर है. ठीक है, सबसे ऊंची शिखर है, हो गया, सबसे बड़ा है. नेक्स्ट 25वां, ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. देखो ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ರೂಮರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಅಫವಾ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ इस अफवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता. इस अफवाह पर, अफवाह ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತು ಇರ್ತದ,
ನಾವು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು. तो ठीक है, क्या है, ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತವನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ अनलिमिटेड बट रिसोर्स आर लिमिटेड. ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, हम क्या चाहते हैं, अनलिमिटेड चाहते हैं, बट रिसोर्स आर लिमिटेड. रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है. मनुष्य की इच्छाएं असीमित है लेकिन प्राकृतिक, इधर है, मनुष्य की इच्छाएं असीमित है लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित है. ये है, इधर से ले लेना, ये ऐसा करके ऐसा है, ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये ऐसा जाके ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गया. ये मनुष्य की इच्छाएं सीमित है लेकिन प्राकृतिक असीमित है. नेक्स्ट 27. ಮಾನವನು ದೇವರ ಉತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 27 क्या है, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है. 28. ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯ ज्ञान की आधारशिला है. 29. ನಿನ್ನೆ ಆತನು ದಿನವೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದನು. कल उसने दिन भर मेरे साथ बातों में बिताया. दिन भर उसने मेरे साथ बातें करते हुए बिताया. 30. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆಯಾ? आर यू कमिंग होम विथ मी? क्या आप मेरे साथ घर आ रहे हो? क्या आप मेरे साथ घर आ रहे हो? 31. चलो 31 देखो क्या है. 31 ಏನಾದ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಾರವೆ. कांट वी लिव विदाउट मोबाइल फोन? कहा गया, क्या हम मोबाइल फोन के बिना जी नहीं सकते? क्या जी नहीं सकते मोबाइल फोन के? नहीं जी सकते. आजकल मोबाइल फोन के बिना तो कोई नहीं जी सकता है. ये ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो हिंदी में क्या ऐसा हुआ, क्या हम मोबाइल फोन के बिना नहीं जी सकते? ठीक है. नेक्स्ट 32. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ. अगर जीवन में अनुशासन नहीं तो खुशी और शांति भी नहीं. जीवन में अनुशासन तो खुशी शांति भी नहीं. नेक्स्ट 33. ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದಲೇ ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾರರು. केवल धन से ही कोई भी सुख नहीं प्राप्त नहीं, कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता. कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता. कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता. केवल धन से ही कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता. 34. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನ್ನರ್ एट 8 o'clock. हम रात का भोजन 8 बजे करेंगे. हम रात का भोजन 8 बजे करेंगे. सर्दी का मौसम में 7 बजे कर लेते लोग, समर में गर्मी में 10 बजे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुवाद क्या है, हम रात का भोजन 8 बजे करेंगे. राइट. 35. ಮೋಡಗಳು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. मुझे विश्वास है कि घने बादल होने से बारिश जरूर होगी. इल्लದ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಬರ್ರಿ, ऐसे ऐसा करके इधर आओ. बारिश होगी. घने बादल मतलब मुझे विश्वास है कि घने बादल होने से बारिश जरूर होगी. 34, 35, 36 देखो. 36 क्या है, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ನಂತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳು. डू योर ड्यूटी फर्स्ट देन आस्क फॉर योर राइट्स. पहले अपना कर्तव्य करो, पहले अपना कर्तव्य कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, फिर अधिकार के बारे में पूछिए. पहले आप अपना कर्तव्य कर्तव्य कीजिए, फिर बाद में अधिकार के बारे में पूछिए. ठीक है. 37. शायद 37 आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा. ठीक है, 37 नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सॉरी बोलता हूं उसके लिए, लेकिन मैं बता देता हूं 37 क्या है. ಭಾಷೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ
भाषा समझने के लिए सरल और सहज होना चाहिए। भाषा समझने के लिए सरल और सहज होना चाहिए ಅಂದ್ರೆ language should be simple and easy to understand। भाषा समझने के लिए सरल एवं सहज होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके। अभी इधर चलते हैं 38 के ऊपर। 38 के ऊपर 38 क्या है? मोबाइल फोन 38 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು। ಗಿವ್ ಮೈ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್। ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आपके पेरेंट्स को मेरा प्रणाम कहना। 39 क्या आप कॉपी लेंगे? क्या आप कॉपी लेंगे? ತಾವು ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿ? ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ? क्या आप कॉपी लेंगे? यस आई विल लूंगा। 40 बारिश के 40 ಮಳೆಯ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ। when the rain stops will shall go out। बारिश के रुकने पर हम बाहर चलेंगे। बारिश के रुकने पर हम बाहर चलेंगे। अनुवाद कई प्रकार से लिखा जाता है। ये कि बारिश के रुकने पर हम बाहर चलेंगे, बारिश को ठहरने पर बाहर चलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। 41 ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷವಿದ್ದೆ। मैं मैसूर में 1 साल था। अथवा मैं मैसूर में 1 साल बिताया। मैं मैसूर में 1 साल था। राइट। 42 ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ। ನಾನೇ I spent lot of money on books yesterday। मैंने कल पुस्तकों के लिए बहुत खर्च किया। मैंने कल पुस्तकों के लिए बहुत खर्च किया। नेक्स्ट 43 ನೋಡ್ರಿ ಏನದ? ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಡುವನು। ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಡುವನು। He is going to leave college in the month of June। जून महीने में वह कॉलेज छोड़ेगा। नोड्रे ಇಲ್ಲಿ कॉलेज छोड़ेगा अंत बंदल। अभी आप उसको महाविद्यालय भी लिख सकते हो। ठीक, अभी महाविद्यालय लिख दोगे। ठीक है, तो महाविद्यालय ने कॉलेज का कॉलेज ही लिखना। मैं बताऊंगा इसका क्या होता है किरकिरी। कल महीने का अंतिम दिन होगा। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ मंथ। टुमारो ನಾಳೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ। कल महीने का अंतिम दिन होगा या आखिरी दिन होगा। 45 ನೋಡ್ರಿ 45 ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸಫಲತೆಯು ಸಿಗಲಾರದು। देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होगी या नहीं होती। 46 ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು। ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು। देशभक्तों का सदा आदर और सम्मान करना चाहिए। देशभक्तों को सदा आदर और सम्मान करना चाहिए। 47 ದಿನಗಳದಂತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ। The problem of unemployment is increasing day by day। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी ಅಂದ್ರೆ अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट 48 Buddhism was founded by गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धನಿಂದ बौद्ध धर्मವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है। अथवा बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। करके इस तरीके से क्या है आपके 48 क्या है आपके ये अनुवाद है। मैंने अनुवाद आप लोगों को बता दिया हूं। अभी मैं इसके अंदर ध्यान करने वाली बात यहां पर देखो क्या है। अभी तकरीबन विद्यार्थी मित्र आपके जो भी है ना 48 जो क्लास वर्कबुक के अंदर जो भी आपके अनुवाद है, मैंने अनुवाद सारा यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है। आपको इंग्लिश शब्द को इंग्लिश शब्द में ही तोड़ना है। जैसे अभी मोबाइल आया है यहाँ पर एक जगह पर,
अभी मोबाइल है, मोबाइल को तो मोबाइल ही लिखना पड़ेगा। मोबाइल का हिंदी क्या होता है, किसी को पता है आज तक मोबाइल का हिंदी क्या है? यहाँ मोबाइल है, आप मोबाइल को क्या साबुनदानी जैसे लिखोगे क्या उसको? मोबाइल साबुन की बट्ट जैसी, मोबाइल को मोबाइल लिखना पड़ेगा। अभी कॉलेज है, कॉलेज का तो महाविद्यालय होता है, ठीक है, लेकिन क्या है आपके कुछ शब्द है ना जैसे वैसे लिख देना है, ज्यादा एडवांस हिंदी में नहीं लेके जाना है उसको, बड़ी हिंदी में नहीं जाना है, शब्द को वहीं तोड़ देना है। कॉलेज हो गया, बस स्टैंड हो गया, मोबाइल हो गया, और यहाँ पर देखो कुछ ऐसे ऐसे शब्द है उसको उसी में रखो, इंग्लिश में ही रखो उसको, लेकिन उसको क्या लिखना है तो देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखना है। कॉलेज कॉलेज करके हिंदी में लिखना। कुछ शब्द ऐसे है आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता है ना, उसको इंग्लिश में ही लिख दो। इंग्लिश मतलब क्या, रोमन में नहीं लिखना, लिपि में। इंग्लिश मतलब कि ये BCD रोमन में नहीं लिखना, ठीक है। कॉलेज है, अब कॉलेज को ऐसा नहीं लिखना, फिर ये नहीं लिखना है, कॉलेज को क्या है ये अपने अक्षर में लिखना है। देवनागरी लिपि, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखना है आप लोगों को। ऐसा कहते हुए ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत फायदा होने वाली क्लास है, ऐसा उम्मीद करते हुए शायद आप लोगों को ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट आपका जो भी ग्रामर क्लास है मैं ग्रामर क्लास लेके आऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप और भी हमारी क्लास इस सीरीज में देख सकते हो, अच्छे अंक ला सकते हो कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।